سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے مودی حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرتارپور کھل سکتا ہے تو شاردا پیٹ راستہ کیوں نہیں کھل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے۔ محبوبہ نے کہا کہ کشمیر مسئلے کے حل کے لیے واجپائی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا ایک ساتھ آ سکتے ہیں تو مسئلے کشمیر کے حل کے لیے ہندو پاک ساتھ کیوں نہیں آ سکتے۔ پی ڈی پی صدر نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمان شدت پسند نہیں بلکہ اعتدال پسند اور اسلام کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہشت پسند ہوتے تو ہندوستان کے ساتھ رہنے کے بجائے پاکستان کے ساتھ جاتے۔ وہ ممبئی میں میڈیا سے بات کر رہی تھی۔ Unfortunately, we did not have a very good experience when UPA was there for 10 years because they did not do anything. In fact, بہت جو سولوشن واجپائی اور مشرف کے تقریباً ہو گیا تھا تو اس کے بعد they did not pick up from that. So that was a disillusionment, though I'm sure Dr. Manmohan Singh was very keen on it, but unfortunately maybe somewhere he lacked maybe the authority or something within his party and even outside his party. So he was not able to do it. بہت امید تھی مودی جی سے کہ وہ جموں کشمیر کو ریزالو کرنے میں اپنا مینڈیٹ استعمال کریں گے، نہیں کیا۔ So let's see what time throws up. کون آتا ہے سامنے۔ The Kartarpur was it was a great chance, and secondly, people keep on saying that Imran Khan is a proxy for army. So if he is that is better, because that means army and he will be on the same page. And if he is saying let's talk, let's have a dialogue, let's go for reconciliation, that's all the better. So I see a chance, but as you know that till 2019 elections, we may have to wait because of the domestic politics. یہ تو ہے کہ پاکستان میں کشمیر کو ایشو نہیں بنایا جاتا ہے، انڈیا کو ایشو نہیں بنایا جاتا الیکشن میں، پر انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں ایسے ہی پالیٹکس ہو گئی ہے کہ پاکستان اور کشمیر کو the more tough your stance is towards Pakistan, towards Kashmir, the more you expect to get votes. That's the problem. ریاست جموں کشمیر میں خواتین کے جنسی استحصال کو روکنے کی جانب بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل نے 2 بلوں کو منظوری دی ہے۔ بدعنوانی کی روک تھام اور جرائم سے متعلق بل کو منظوری ملی ہے۔ خواتین کے جنسی استحصال کو روکنے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ قانون وضع کرنے والی جموں کشمیر ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ اس سے دفاتر، گھروں میں جنسی استحصال کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ محبوبہ مفتی نے اس معاملے پر بھی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پہلی ریاست ہوگی جس میں خواتین کے خلاف جو جنسی استحصال ہوتے ہیں اس کے خلاف قانون بنا ہے ہندوستان کی، اس پہ کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بالکل جموں کشمیر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے جب کہیں کانفلکٹ ہوتا ہے تو عورتوں کو ہوتی ہے، مگر یہ بھی مجھے کہتے ہوئے بہت فخر ہوتا ہے کہ جموں کشمیر سب سے سیف جگہ ہے عورتوں کے لیے۔ اگر کوئی ٹورسٹ یا کوئی دوسرا اکیلا بھی آنا چاہے تو جموں کشمیر سب سے سیف پلیس ہے۔ اور ہماری کوشش رہی میری اپنی سرکار میں کہ جو پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ خریدی جائے اس پہ ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں لیتے ہیں، اس سے بھی ایک امپاورمنٹ ہوتی ہے۔ سپر قصبہ اور تحصیل کے زیناگیر میں آج دوسرے روز بھی ہڑتال رہی۔ بدھ کوبراٹ کلان انکاؤنٹر میں 2 مقامی ملیٹنٹوں کی ہلاکت کے خلاف یہ ہڑتال رہی۔ اس دوران تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہی، تاہم نجی ٹریفک جزوی طور پر چلتا رہا۔ اسی دوران حکام کی جانب سے گزشتہ رات کے دوران ہی تمام تعلیمی اداروں کو احتیاطی طور پر آج کے دن بند رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ پی ڈی پی لیڈر فردوس ٹاک کا جموں میں بجرنگ دل کے کچھ کارکنوں نے گھیراؤ کیا۔ فردوس ٹاک پریس کلب جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے۔ جو ہی وہ وہاں پہنچے تو بجرنگ دل کے کارکنوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور ان کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی۔ ان کارکنوں کا الزام ہے کہ ٹاک نے کشتواڑ میں جموں کے لوگوں کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ پولیس نے اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے بجرنگ دل کے کارکنوں پر لاٹھی چارج کر کے ٹاک کو بحفاظت پریس کلب کے اندر لایا۔ ٹاک نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جموں میں چند ایسے بھی عناصر ہیں جو یہاں کے پرامن ماحول کو بگاڑ رہے ہیں۔ کہ جموں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمپردائک بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، ہمارے جموں کی دھرتی پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ سب رہ رہے، آج تک کوئی ایسی ٹینشن کا کریٹ نہیں ہوئی، پر یہ کچھ موقع پرست جو راجنیتا ہیں ایسی بیان بازی کرتے ہیں جس سے ہم ڈوگروں کی بھاونا آہت ہو۔ I stand by my words, I stand by my remark, I stand by my commitment.
nobody on the earth is permissible to create a wedge between the communities, and there are people, there are fringe elements who are trying to create a wedge between the communities in Jammu with an eye on the upcoming election. नफरत की सियासत का खेल खत्म हो गया है, लोग सेकुलर जमातों का साथ दे रहे हैं। इन बातों का इजहार मेंबर असेंबली बिहार और कांग्रेस के कश्मीर उमूर के इंचार्ज सेक्रेटरी डॉक्टर शकील अहमद ने कुपवाड़ा में किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क के साथ साथ कश्मीर में नफरत और बदनवानी की सियासत की है। इन्होंने टीआरसी कुपवाड़ा में पार्टी कारकुनों से बातचीत की। आपका स्वागत है। मेजोरिटी जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की हिंदू है और वो अमन पसंद है। इसी बात है कि आरएसएस है, आरएसएस करती है, बदमाशी करती है, शुरू से करती है। मैंने कहा ना कि ये तय करना पड़ेगा गांधी का मुल्क है कि गोडसे का मुल्क है। ये गांधी का मुल्क है और गांधी के रास्ते पे चलेगा। हाल ही में पंचायती इंतखाबात में जीत हासिल करने वाले पंचों और सरपंचों ने आज श्रीनगर में जेएंडके अवामी राज मूवमेंट के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर नौमुंतखब पंचों और सरपंचों ने गवर्नर इंतजामिया से उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। साथ ही कई दीगर मसाइल का भी जिक्र किया। 35,000 लोगों की हमारी नुमाइंदा चुनिंदा लोग हैं हमारे पास। अगर सरकार, मैंने पहले भी अर्ज की, आज सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, अगर सरकार ये हमारी मांगी पूरी नहीं करती है तो हम श्रीनगर से लेकर दिल्ली के ऐवान तक, जंतर मंतर तक एहतजाज करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को। हमारे पास कश्मीर में आज बड़े सारे इश्यूज हैं, दूसरे मामला को छोड़कर जो पानी बिजली का मसला है और बेसिक इश्यूज हैं, अगर जिनके साथ हम वाबस्ता हैं, नोटिफिकेशन जारी करके जो लेफ्ट आउट पंचायत मेंबरान जहां पे इलेक्शंस नहीं हुआ वहां भी इलेक्शन करवाए और बीडीसीज और डीडीसीज का इलेक्शन फिल फॉल कराए, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी हो कि पंचायत मेंबरान के ही कोटा से उन लोगों को लिया जाए। और जो हमारी 4 सीटें रिजर्व है अपर हाउस में, उसके लिए भी हमारे ही लोगों का इंतखाब अमल में लाया जाए। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने हुकूमत से अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा कि शादीशुदा पंडित मुलाजिम जोड़ों को एक ही जिले में तैनात किया जाए। पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि उनके जायज मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसमें शादीशुदा मुलाजिम जोड़ों को एक ही जिले में तैनात करना भी शामिल है। उन्होंने हुकूमत से इस जानिब फौरी तवज्जो देने की मांग की। रिहैबिलिटेशन कहाँ से हुई? फिर ये रिहैबिलिटेशन पे क्वेश्चन मार्क है। इसमें कैबिनेट की डिसीजन है कि हस्बैंड वाइफ को एक जगह रखा जाए। रिलीफ कमिश्नर खुद एंडोर्स कर रहे हैं कि भाई इनको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स होनी चाहिए इनकी। तो फिर वापस जाने का फिर उस डी अटैच क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको डी अटैच कर रहे हैं अननेसेसरली। ये उस टाइम उमर साहब की गवर्नमेंट में फिर कम से कम 55 और 60 के एम्प्लॉयज़ के करीब इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स हुई थी। और आज की डेट में इस टाइम गवर्नर रूल में ये ऐसा हो रहा है कि वापस रिवोक हो रहे हैं। दैट मीन्स कि जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसका अलग डिसीजन होगा, फिर तीसरी गवर्नमेंट आएगी उसका अलग डिसीजन होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। मराजीकुंड रफियाबाद बारामूला में कायम जामा मस्जिद को कुछ नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रात के दौरान कुछ शरपसंद अनासर ने जामा मस्जिद में घुसकर उसकी तमाम खिड़कियां तोड़ डाली। इन्होंने इलाके में मौजूद सोलर लाइट्स को भी नुकसान पहुंचाया। उस वाक़े के खिलाफ आज मकामी लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। इन्होंने कई घंटे तक मुतरगाम सुपोर रोड बंद कर दिया। लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे के करीब पहले इलाके की बिजली गुल कर दी गई, उसके बाद इलाके में जामा मस्जिद की तमाम खिड़कियों को तोड़ दिया गया। उधर SHO डंगीवुच और SDPO रफियाबाद जाए मौका पर पहुंचे और लोगों को यकीन दिलाया कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को सजा दी जाएगी। लोगों ने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। आइडेंटिफाई गसान कि यह कुछ जमात क्या तो गोडे तुलमो फर्स्ट ऑफ ऑल तुलम तमो ये ट्रांसफार्मस फीस कर लाइट डिसकनेक्ट अम पे यह वुच ये लाइट चलान यह सोलर लाइट तो शिरक यह फुट अम पे आए अंदर तो कोर मस्जिद शरीफ अंदर दु नुकसान ये फ्रंट साइड ये शीश वीश शुरू सोर ये क्रेकस कर खत हर मौलवी साहब कमरस कोर मौलवी साहब कमर त क्रेक बे अंदर वो इन्वर्टर लाइट चलान पे शिरक जनाब सत फुट वन मान वनस ये हुकामस कि तुम करो अत इन्वेस्टिगेशन अगर मस्जिद शरीफ खुदा सुन घर तो अत क्या नुकसान कर तो ना दुन गो टास पटास यह हेक सर कर वुचित कह कुस क्या वन हटमुट क्या वन कंस नाव यह कम कोर ये कोड़क अनाथ दुन नुकसान तमाम शीश फटक दायर दरवाज फटक मस्जिद क्या रोया शहित इसके अलावा फटक ये सोलर लाइट 50 सास अम मजीद आए अंदर मस्जिद में सोलर लाइट फटक बस ये वजह सुबह पढ़ान फर्ज वुचान हिजब हाल तहकीकत गई बे क्या यह कम कोर सिविल बे कह तहकीकत। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
गुज़श्ता बरसों के बरक्स इस साल वादी कश्मीर में चिल्ले कलान से कबल ही 2 मरतबा बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फबारी को सियाहत के लिए अच्छा शगुन समझा जा रहा है। KCCI के सदर आशिक हुसैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उम्मीद जताई कि वक्त से पहले ही बर्फबारी होने की खबर मिलते ही सयाह यहां का रुख करने आएंगे। आशिक हुसैन ने साथ ही इंतजामिया पर जोर दिया कि बर्फबारी में दरमांदा सियाहों की मदद की जाए। तो मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है इसमें, मगर एट द सेम टाइम जो भी हमारे सियाह यहाँ पे थे बर्फ़ के टाइम पे उन्होंने एंजॉय तो किया, बट एट द सेम टाइम जब इंसान फिर फंस जाता है यहाँ पे, जो एक मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी टूरिस्ट स्पॉट पे थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम करके उनको कंफर्ट लेवल में लाके, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो प्री विंटर स्नो हो गया और ये एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल देगा, क्योंकि मुझे याद है नवंबर दिसंबर में क्या हम जनवरी में भी तरसते थे कि स्नो आ जाएगा ताकि टूरिस्ट आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो स्नो देखने वाले लोग हैं पूरे इंडिया में इंशाल्लाह उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा इस बात का। करालपुरा मागाम में खुदाई के दौरान सोने का पत्थर निकलने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। करालपुरा मागाम के गुलाम मोहसिन परा के अफराद खाना अपने सहन में कुआं खोद रहे थे। अफराद खाना का कहना है कि इस दौरान एक खूबसूरत तराशते हुए पत्थर पर एक मूर्ति की शक्ल में सोने के रंग में पत्थर पाया गया। वो इसे मागाम बाजार में मौजूद अब्दुल गनी नामी सुनार की दुकान पर शनाख्त करने की गर्ज से ले गए। अफराद खाना के मुताबिक दुकानदार ने कई दिनों के बाद आने के लिए कहा था। बाद में वो 3 माह से टाल मटोल कर रहे हैं। अफराद खाना ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। ट्रंच खनन जेतन तो पाने खना मुजुर वुजुर कहें तन पाने खनान तो खनान खनान खनस 2-3 फुट तो क्या वन अत द्राय 2 कन तो ये कन पे थोड़ा मोर तय पे सो मग में सोंदर तो गसान अमिस निश तो अमिस हो अमिस दोप तो यह वुच तो यह क्या दोपन नीरो 2-3 दुह यीजो तो आय वन आज आय अमिस निश तो यह अत नई नई हिसाब वन गरा वन मे नु चूरन गरा दपान मे कमिस तम हमिस सोंदरस दितमुत यमिस सोंदरस दितमुत तो गरा वन मे निश गरा क्या थामत आय तो तम दोपन दरवाज करो बंद तो बिहो पत्थर तो पत्थर बेत करो कत तो दिन कह परवा यह क्या थामत यह वनु कंस ट्रांच पान तो खना मुजुर वुजुर कहें आज गए 3 रेत अम दो मान बचन बह दिमो 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये यह नसा यह वनकस पलटे फिरान वह वन 5 किलो सोन 5 किलो हसा मे अत 5 किलो अथ मज हसा शक गसान दिन सा वापस पोस दिनो बह करो दरवाज बंद यह तथ मे पता ये वन दार पे मान तथ बह इनकार कर कहें वो मे निश सबूत अमुक कसम नशम कनम नशम रचम 10 रुपये नशम 5 रचम नशम 5-7 रटम ये पे अगर मे निश कह या मे रात माजी में नाला विशु की तुगयानी से जंगलपुरा और कलीमगुंड जैसे देहात काफी तबाह हो गए थे। महकमे देही तरक्यात ने एक अहम पहल के तहत कई नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। महकमे के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शीतल नंदा ने जिला कुलगाम के जंगलपुरा और कलीमगुंड में ऐसे ही प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इनके हमरा डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट DC कुलगाम और दीगर अफसरान थे। कलीमगुंड में तकरीब पर सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि यह काम जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। लोगों ने अफसरान का शुक्रिया अदा किया। पास आए थे, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो फ्लड प्रोटेक्शन का काम है। विशल नाला यहाँ पे थोड़ा ऐसा रहता है कि काफी नुकसान पहुँचाता है। सो उसकी वजह से हमने फिर एस्टिमेट बनवा के और आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपना कन्वर्जेंस में फंड दिया है, हमने नरेगा में फंड दिया है और हमने काम ये शुरू करवा दिया है। फेज वाइज फेज होगा, बहुत बड़ा काम है, जैसे जैसे होता जाएगा फंडिंग भी आती जाएगी।
शोपियां ट्रेडर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी ने हुकूमत की जानिब से शोपियां अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा देने का खैर मकदम किया है। मुख्तलिफ समाजी हलकों के नुमाइंदों ने जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां अवैस अहमद से मुलाकात करते हुए मौजूदा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस फैसले से शोपियां के अवाम ने राहत पाई है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अब यहां का तिब्बी ढांचा बेहतर होगा। सर्दियों के मौसम में जम्मू शहर में भी कश्मीरी तहजीब और तमद्दुन की झलकियां देखने को मिल रही हैं। दरबार मूव के बाद जम्मू शहर में कश्मीरियों की तादाद में इजाफा होता है। यहां हर सिमत कश्मीरी कल्चर की अक्कासी होती है। पेश है ये रिपोर्ट। कश्मीर के रिवायती लिबास पहने इन लोगों और बाजारों में कांगड़ियों की खरीद फरोख्त को देखकर आपके दिमाग में कश्मीर के किसी बाजार की तस्वीर सामने आई होगी, लेकिन ये मनाजिर कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू के हैं। सालाना दरबार मूव के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दीगर दफातर जम्मू मुंतकिल होने के साथ ही जम्मू शहर में कश्मीरी लोगों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले से ही कश्मीरी माइग्रेंट जम्मू में आबाद हैं। दरबार मूव के सिलसिले में आने वाले मुलाजमीन और दीगर लोगों की वजह से जम्मू में कश्मीरी साजो सामान की खरीदारी में इजाफा देखने को मिलता है। फेरन, कांगड़ी और सूखी सब्जियों की खरीद फरोख्त उरूज पर रहती है। अब जम्मू के लोग भी इन अशिया का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर है, ठीक है। ये हमें भी अच्छा लगता है पहने हुए। एक तो हवा नहीं इसमें क्रॉस होती है, एक तो ये लॉन्ग है और ठंड भी रोक के रखता है। और ये कांगड़ी वगैरह जैसे सब्जियां, कोई भी हरी सब्जियां या अखरोट बादाम कुछ भी आता है कश्मीर का, वो हमारे इधर चलता है, आम चलता है। एक ही राज्य में हम लोगों का भाईचारा नहीं होगा तो पूरे देश को कैसे मान लेंगे। अच्छा कल्चर है, इकट्ठे बैठते हैं, भाई बहन हर एक चीज़ इकट्ठे है। जैसे हम खाना भी खाते हैं, एक ही जैसा खाना लगता है। यहाँ होटल में खाना भी मिलते हैं, वो भी कश्मीर की खाना मिलता है, एक ही खाना लगता है, वहाँ भी हो गया। जम्मू के दुकानदारों का कहना है कि वो सर्दी के मौसम में कश्मीर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें दस्तयाब रखते हैं। जम्मू शहर में कश्मीरी लोगों की आमद बढ़ने की वजह से इन चीजों की मांग बढ़ जाती है। जम्मू के लोग सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं, ऐसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया और शुआरे गर्म काजू वगैरह जो खरीदने के लिए जम्मू के लोग भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं और बाहर से पंजाब, राजस्थान हर जगह से लोग आकर लेते हैं। और जैसे कांगड़ी हो गई ये ले जाते हैं। और भी हमारे पास चाय, कश्मीरी चाय रखे हैं। हाँ, जम्मू के अंदर बहुत भाईचारा है। हमारे यहाँ बस स्टैंड में देख लो, अगर हमारी ये 100 दुकान है तो 50 में इधर मुस्लिम भाई भी काम कर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं, चाहे इधर कोई नहीं चक्कर है हमारे इधर। ये कुलचा खाऊंगा, ये कुलचा अच्छा है, ये कुलचा अच्छा है, ये कुलचा मैं करना हूँ, ये कुलचा अच्छा है। गिरदा भी लेता है, कुलचा भी लेता है, लवासा लेता है, हर कोई लेता है। हाँ, खाने में मजा आता है उनको। वाज़ेह रहे कि शदीद सर्दी के बाद भी खासी तादाद में कश्मीरी लोग मौसम सरमा में जम्मू का रुख करते हैं। हमेशा से ही आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी का सेंटर रहा है। कश्मीर के कल्चर को बखूबी जम्मू के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है और जम्मू के लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी को और मजबूत किया जाए। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बार एसोसिएशन अनंतनाग ने डीसी अनंतनाग के अमले पर वकला के साथ ज्यादती और गैर शाइस्ता सलूक बरतने का इल्जाम लगाया। बार के सदर फयाज अहमद सौदागर ने इल्जाम लगाया कि डीसी अनंतनाग अवामी मामलात को लेकर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। सौदागर ने कहा कि वकला जब भी कोई मामला लेकर डीसी के दफ्तर हाजिरी देने के लिए गए तो उन्हें गैर हाजिर पाया गया। इन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस में कई सालों से मुलाजमीन का तबादला भी अमल में नहीं लाया गया है। उनका कहना है कि वह बार ने गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया है। डीसी साहब के पास मिलने गए एक केस के सिलसिले में, लेकिन उनके पियान ने उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। 2017 में यहाँ की सारी सड़कें जो हैं उनको मैकडेमाइज किया गया। सिर्फ 8 महीनों के बाद जुलाई 2018 में
उस मैकडम को उखाड़ के वहाँ पे ड्रेन बनाई गई। अगर कोऑर्डिनेशन होती तो पहले ड्रेन बनानी थी, उसके बाद मैकडमाइज करना था। लेकिन मुझे लगता है इसमें स्टेट एक्सचेकर पे भी बर्डन पड़ता है, इसलिए हमने इस मेमोरेंडम में ये भी लिखा है कि जब तक इंक्वायरी हो, इस चीज़ की इंक्वायरी हो, तब तक डिप्टी कमिश्नर साहब को ट्रांसफ़र कीजिए। इसी ऑफिस में जो भी क्लर्कल स्टाफ है या मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उनको कम से कम 8 साल 10 साल कभी उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। वो लोगों का खून चूस रहे हैं वहाँ पे, ये करप्शन का हब। महकमे पीडीडी त्राल की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज किया गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में हीटर और बॉयलरों को जब्त किया गया है। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि इस मुहिम का मकसद लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल न करें। के बारे में बड़ा पर्टिकुलर है, हमारा चीफ साहब बड़ा पर्टिकुलर है, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बड़ा पर्टिकुलर है, हर अथॉरिटी बड़ी पर्टिकुलर है कि इसमें ये ड्राइव कंटिन्यू रहे ताकि ये लोड शेडिंग का मसला है ये इसमें काबू पाए। और सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में लोग बिजली के बहरान से परेशान हैं। उधर सरकार ने इस बहरान से निपटने की गर्ज से तकियाबुल मेडोरा में एक रिसीविंग स्टेशन पर काम शुरू किया था। मेडोरा त्राल के लोगों का कहना है कि अगरचे रिसीविंग स्टेशन पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इसका काम रोक दिया गया है। इसकी वजह से लोगों में महकमे के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इन्होंने रिसीविंग स्टेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। हल्कस ग्रिड स्टेशन तो आज पोस त्रम ठेकेदार काम करान कहें कल से सुबह हसा गया तैयार सुबह कल गया तैयार मगर गसन तैयार कहें तो अच्छी प्रॉब्लम जबरदस्त है पावर। जब हम हायर अथॉरिटीज के जाते हैं तो वो यही पूछते हैं कि इसके फंड्स इसके वो इसके ये इशू बहुत सारे इश्यूज दे रहे हैं। यही मैसेज हायर अथॉरिटी को देना चाहते हैं कि यही पहुंचाना चाहते हैं कि वी आर टोटली लेकिंग फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटीज। 80% काम वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ट्रांसफार्मर आ जाएगा तो वो कमीशन हो जाएगा। सो वी इन एनी केस हैव टू डू इट बिफोर मार्च 31 वो स्टेट का है, बट आई थिंक बाय फरवरी या फरवरी एंड तक वो कमीशन। टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जोनल सदर गुरेज शेख अखलाक ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि SSA असातिज़ा की 4 माह से बंद पड़ी तनख्वाह फौरी तौर वागजार की जाए। उन्होंने SSB असातिज़ा की तनख्वाह को डीलिंक करने पर गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने TJAC के लीडरों के रोल की भी सराहना की। टीचर जो हैं पिछले 4 महीनों से तनख्वाहों के बगैर हैं और इसलिए मैं गवर्नर इंतज़ामिया से पुरज़ोर गुजारिश करता हूं कि उनके हक़ में जल्द अज जल्द सैलरी वागुजार की जाए। और इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गवर्नर इंतज़ामिया का जिन्होंने SSA टीचर्स की सैलरी को MHRD से डीलिंग करके स्टेट के बजट को लिंक किया और इसके अलावा उनके हक़ में 7वें पे कमीशन का भी इतलाक़ हुआ। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ TJ के लीडरान को और उन असातिज़ा साहिबान को जो गुरेज दिलील और बख्तूर से मेरे साथ आकर श्रीनगर की प्रताप पार्क में हंगर स्ट्राइक में शमूलियत इख्तियार की और आज उनकी कुर्बानी जो है वो रंग लाई। नौजवानों को बंदूक के बजाय कौमी दायरे में अपना मुस्तकबिल तलाश करना चाहिए। फौज के 7 सेक्टर के ब्रिगेडियर ने इन बातों का इजहार किया। उनका कहना था कि तालीम के हुसूल और अमन के माहौल में ही तलबा कश्मीर के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने आर्मी गुडविल स्कूल बटाकोट हंदवाड़ा की सालाना तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। पुलिस, फौज, सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जो ओवरऑल मैसेज है, मैसेज तो एक ही होता है जी। कोई भी समाज हो, समाज में शांति होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा काबिल बने। तो जो बच्चे बाहर गए हैं, जो अभी रेडिकलाइज हो गए हैं या रेडिकलाइजेशन दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि ये छोड़िए, कश्मीर की मेन स्ट्रीम में जुड़िए, समाज के मेन स्ट्रीम में आइए और अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने समाज का, जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम अच्छा काम करके। जम्मू के ब्रिगेडियर राजेंद्र ऑडिटोरियम में इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एसोसिएशन ने 2 रोज़ा 22वां सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इन्होंने मुल्क की मईशत से जुड़े इदारों व दीगर मुतल्लिकीन को मुत्तहिद होकर काम करने का मशवरा दिया। इस सालाना कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अशोक ईमा समेत कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की।
मतलब आप देखिए कंट्री के लीडिंग इकोनॉमिस्ट जो इस वक्त हमारे की नोट स्पीकर हैं वो बड़ी लीडिंग इकोनॉमिस्ट है कंट्री की, तो वो जो इनपुट देंगे वो गवर्नमेंट तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो पॉलिसीज़ हमारी हैं उनका जो एनालिसिस होगा वो इनपुट गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और अकॉर्डिंगली फ्यूचर में वो अपनी पॉलिसीज़ को उसकी इन प्रोसीडिंग्स की लाइट में